हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्यूसाइट। जो स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को पहले विजिट किया है एंड हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, दे नो दैट वी आर डेडिकेटेड एट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट कवरिंग वेरियस टॉपिक्स फॉर यू टू लर्न. Students, I urge you all to please subscribe to our channel, like or dislike our videos, because your valuable feedback will give us encouragement to upload more such informative content in the future as well. Today we are going to take a slightly different path. We will be starting a new video series, as you can see, on vocabulary, English vocabulary. This video series will not only help school going students but also serve the students who are preparing for competitive examinations. So without any further delay, let us begin today's video. One important thing I missed here, that we will try to upload videos covering various topics every day. But for vocabulary sessions, we will restrict our videos upload to a maximum of 1 or 2 videos every week. Okay. So इससे किसी पर एक्स्ट्रा बर्डन, किसी स्टूडेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा जो अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एंड यू विल हैव अ सफिशिएंट टाइम रिवाइजिंग व्हाट यू विल लर्न इन दीज सेशंस. So let us start our very first session on vocabulary by EduSite. Students, let us take up our very first word, which is egoist. Its meaning is a self-centered person. That is a person who always thinks about himself. Okay, egoist is a very common word. कई स्टूडेंट्स इसका मतलब जानते होंगे और इसको कॉमनली यूज भी करते होंगे. ओके, इससे ही मिलता जुलता एक और वर्ड हम पढ़ते हैं, दैट इज ईगोटिस्ट. It also means a self-centered person. That is a person who always talks about himself. Students, आपने देखा होगा कि egoist में मैंने यूज किया है a person who always thinks about himself. But in egotist, I am using a person who always talks about himself. That is the difference between these two words. You can remember the talk word by the letter T in egotist. Okay. Now let us better understand these two words by their root word ego. Ego means I or self. जहां पर भी जिस किसी वर्ड में ईगो यूज होगा, जैसे ईगोइस्ट, दैट मीन्स दैट वर्ड इज रिलेटेड टू सेल्फ. ओके, जैसे कि हमने वर्ड अभी डिस्कस किया था ईगोइस्ट, विच इंक्लूड्स द रूट वर्ड ईगो, मीन्स सेल्फ सेंटर्ड पर्सन और अ पर्सन हु इज कंसर्न्ड अबाउट हिमसेल्फ. ओके, हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. इन सिमिलर वे, one word was also there, egotist. Egotist also includes the root word ego, means a self-centered person who always talks about himself. T means talk. Okay. अब हम इस ईगो रूट वर्ड से कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं. Let us discuss the word egocentric. Egocentric is a person who considers himself the center of universe. Egocentric is extreme form of egoist. Okay. You can remember this word by ego plus centric. Here ego means I, means self, right? Himself, and plus centric means the center of universe, जो खुद को ही पूरी दुनिया का केंद्र समझता है, right? Our next word is egomaniac. Egomaniac is a person whose ego has reached a point of madness. Madness means पागलपन. Okay? मतलब एक पर्सन खुद को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है कि उसका ऑब्सेशन पागलपन बन गया है. आप इस वर्ड को, इसके मीनिंग को कैसे याद रख सकते हैं? ईगो प्लस मैनियक. ईगो मीन्स आई, सेल्फ, राइट, एंड मैनियक मीन्स पागलपन.
मेनिया इज ऑल्सो ए रूट वर्ड. इससे रिलेटेड वर्ड हम आगे पढ़ेंगे. ओके. Egomaniac is the extreme form of egocentric. Let us discuss one more word on the word root ego. The word is alter ego. This word is made up of two word roots. The first one is ego, which we have discussed earlier, and the second is alter. Alter is a root word basically, and it means other. Okay. So the word alter ego means other I, मतलब दूसरा मैं. See here, someone so similar in actions or looks that you can call him or her your other self. मतलब कोई आपसे इतना मिलता जुलता है देखने में, हाव भाव में, बातों में, हैबिट्स में, कि आप उसे आप ऐसा कहोगे कि ये मैं ही हूं, ये दूसरा मैं हूं. और योर अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी. With this, we have discussed some words based on the root word ego. Now we will come to the next root word, that is alter. And we will start with the word altruist. Altruist is the person who looks after the benefits of others, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे. आप इस वर्ड के मीनिंग को कैसे याद रख सकते हैं? देखो, see the first four letters of the word ALTR, which is a modified form of the root word alter. Right? Alter means other, and altruist means जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे. Right? Alter means other, दूसरों की भलाई के बारे में सोचे. इसका सिनोनिम philanthropist भी होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. Now we move on to the next word, which is alternate. It means to skip one and take one. It has the root word alter, right? And alter means other. So alternate means आप एक छोड़ के दूसरा ऑप्ट कर रहे हो. जैसे आप स्कूल या कॉलेज एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जा रहे हो, मीन्स आप ऑल्टरनेट डेज पर जा रहे हो. Our next word is alternative, which is similar to the word alternate, which we have discussed, but with a slight difference. Alternative means used in place of another, that is the other choice. Here also the root word is alter. Alter means other. जैसे आप कहीं जा रहे हैं एंड आप एक रूट चूज ना करके दूसरा रूट चूज कर रहे हैं, दैट इज आप अल्टरनेटिव चॉइस ले रहे हैं. ऑल्टरनेट में आपने देखा था कि आप एक एक्टिविटी एक दिन छोड़कर हर दूसरे दिन कर रहे थे. जैसे आप स्कूल या कॉलेज जा रहे थे तो एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन स्कूल जा रहे थे, राइट? बट इन ऑल्टरनेटिव आप स्कूल या कॉलेज ना जाकर सपोज कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हो. सपोज आप पिकनिक पर जा रहे हो, एंड पिकनिक जाना इज योर अदर चॉइस, इज योर ऑल्टरनेटिव चॉइस. ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन मीन्स चेंजिंग टू समथिंग अदर. It has also the same root word. Alter means other. किसी दूसरे चीज में चेंज कर देना. जैसे आप अपनी पैंट, शर्ट्स या सूट्स टेलर के पास देते हैं ऑल्टरेशन कराने के लिए. दैट मीन्स आप उसको प्राइमरी फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं. चेंजिंग टू समथिंग अदर, दैट मीन्स ऑल्टरेशन. नेक्स्ट वर्ड ऑल्टरकेशन. इट मीन्स अ वर्बल डिस्प्यूट or a fight with words, not physical but with words. Verbal fight, verbal dispute, right? It is a very important word to remember. Okay, here see the root word is again alter. Students tell me, आपकी दूसरों से फाइट कब होती है, वर्बल डिस्प्यूट कब होता है? जब आपका ओपिनियन दूसरों के ओपिनियन से मैच नहीं करता, राइट? हेयर अल्टर स्टैंड फॉर अदर्स, राइट? दूसरों के ओपिनियन से हमारा ओपिनियन मैच अप नहीं करता, देन ऑल्टरकेशन हैपेंस. विद दिस वी हैव डिस्कस्ड सम वर्ड्स रिलेटेड टू द रूट वर्ड ऑल्टर. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूट वर्ड, दैट इज वर्टो. एंड वर्टो मीन्स टू टर्न, मुड़ना. नाउ वी विल डिस्कस सम वर्ड्स बेस्ड ऑन दिस रूट वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज इंट्रोवर्ट. Introvert means you turn your thoughts inwards. See, introvert made up with in plus tro plus
वर्ट. इन मीन्स अंदर एंड वर्टो मीन्स टू टर्न, राइट. मतलब जब आप अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही दबा लेते हो, राइट. These are the persons, it is a personality type. These are the persons, introvert are the persons जो बहुत शाई होते हैं और अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा लेते हैं. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रोवर्ट. यू टर्न योर थॉट्स आउटवर्ड्स. मतलब जब आप अपनी फीलिंग्स को बाहर शो करते हो दूसरों के सामने. हेयर एक्स मीन्स एग्जिट, मीन्स आउटसाइड. व्हेन यू टर्न योर फीलिंग्स or express your feelings or emotions outside. Introvert and extrovert are opposite to each other. Introverts are shy person and extrovert are very expressive. Moving on to the next word, which is ambivert. Ambivert is made up with two root words. First is ambi and second is vert. Meaning of vert, you know that, to turn. Okay. Ambi means both. So ambivert means you can turn your thoughts both inwards and outwards. Means कभी कभी आप अपनी फीलिंग्स को अंदर तक रख लेते हैं एंड कभी एक्सप्रेसिव हो जाते हैं. ओके, मीन्स कभी आप एज इंट्रोवर्ट बिहेव करते हैं एंड कभी एज एक्सट्रोवर्ट. नाउ विद द रूट वर्ड एम्बी विच मीन्स बोथ, लेट अस डिस्कस a word ambidextrous. Ambidextrous are people who can use both hands with equal skill. That means these are the people who जो अपने दोनों हाथ बराबर कुशलता से यूज कर सकें. अच्छा स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी, राइट. उसमें वायरस अपने दोनों हाथों से ब्लैक बोर्ड पर लिखता था, राइट. दैट मीन्स ही कैन यूज हिज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल. So virus was an ambidextrous personality. As you can see, ambidextrous is made up of two words, ambi and dexter. Ambi we have studied earlier, which means both, and dexter is a Latin word. It is a Latin word for right-handed people. Okay, बच्चों मैं आपको बता दूं कि पहले के टाइम में जो राइट हैंडेड पीपल होते थे उनको ज्यादा स्किलफुल माना जाता था. तभी से ये वर्ड डेक्स्टर स्किलफुल एज यूज होने लगा फॉर स्किलफुल पर्सन्स. ओके बच्चों, आप में से कुछ लोगों ने या कुछ स्टूडेंट्स ने कार्टून नेटवर्क पर एक कार्टून आता था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, देखा होगा. उसमें एक छोटा बच्चा होता था जो साइंटिस्ट होता था. वो बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस करता था. तो डेक्स्टर्स लेबोरेटरी ये नाम यहीं से लिया गया है बिकॉज इट मीन्स स्किलफुल. So in English dictionary, dexterous means skillful, which is the root word dexter. Dexter means skill. Okay. And right-handed people को skillful माना जाता था पहले के टाइम में. ओके, जैसे कि मैंने बताया. तो आप वंडर करेंगे कि लेफ्ट हैंडेड लोगों को क्या माना जाता था. लेफ्ट हैंडेड लोगों को अनस्किल्ड माना जाता था. ठीक है, उसके लिए लैटिन वर्ड था सिनिस्टर, जो बाद में हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड हुआ, एंड विच मीन्स इविल, ऑकवर्ड और डेंजरस. ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डेक्स्ट्रस एंड सिनिस्टर आर अपोजिट टू ईच अदर. ओके, डेक्स्ट्रस इज इन पॉजिटिव सेंस एंड सिनिस्टर इज इन नेगेटिव सेंस. अब जैसे राइट और लेफ्ट हैंड लोगों के लिए लैटिन वर्ड्स थे, ऐसे ही कुछ फ्रेंच वर्ड्स भी थे. तो राइट हैंडेड लोगों के लिए फ्रेंच वर्ड था या फ्रेंच रूट था हमारे पास ड्रॉइट, विच मीन्स राइट हैंडेड पीपल. मीन्स ड्रॉइट वर्ड इज अ फ्रेंच वर्ड विच वॉज यूज्ड फॉर राइट हैंडेड पीपल. ओके, एंड इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड आया एड्रॉइट. एड्रॉइट का मीनिंग हो गया स्किलफुल. Okay, or quick-witted. Quick-witted means chalak. So dexterous and adroit are synonyms. Okay. Similarly, for left-handed people, English dictionary में word है gaucherie.
ओके। एंड इसका फ्रेंच रूट था गौशे। गौशे मीन्स लेफ्ट हैंडेड। ओके, लेफ्ट हैंडेड, और इट इज यूज्ड फॉर clumsiness, unskilled, awkward. Okay, so sinister and gaucherie are synonyms, and the meaning of gaucherie is awkward, clumsy, tactless, or embarrassing way of saying things or handling situations. टेक्टलेस का मतलब हो गया ऐसी बातें कहना या कुछ ऐसा करना जो दूसरों को बुरा लगे। ओके, अशिष्टतापूर्ण व्यवहार। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट राइट की डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको ये चीज सब समझ में आ गई होगी। सो अवर नेक्स्ट रूट वर्ड इज एंथ्रोपोस, विच मीन्स मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब ह्यूमन प्रजाति या ह्यूमन रेस। ओके, so first word based on this root word is anthropology. Anthropology is made up with two words, anthropo and logy. As you know, anthropos means mankind, right? And logy means logy represents study. जैसे आपके पास subjects भी होते हैं like biology, psychology, physiology, right? So logy represents study. So anthropology means study of development of human race. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंथ्रोपिस्ट। स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद आ रहा है दैट वी हैव यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज अ सिनोनिम फॉर अल्ट्रुइस्ट, राइट? नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हेयर फिल मीन्स लव एंड एंथ्रोपिस्ट इज यूज्ड हेयर, एंड यू नो दैट एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड। सो लव मैनकाइंड, जो द वन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसानियत से प्यार करे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, मिसैंथ्रोप। वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बाय ब्रेकिंग इट, मिस प्लस एंथ्रोप। ओके, एंथ्रोप एज यू नो रिप्रेजेंट करता है मैनकाइंड को। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिस। बच्चों, आपने सुना होगा वर्ड्स वर्ड मिसअंडरस्टूड और मिसकैलकुलेट। मतलब मिसअंडरस्टूड नेगेटिव वे में यूज हो रहा है। मिसअंडरस्टूड मीन्स गलत फहमी, एक नेगेटिव वे में यूज हो रहा है। मिसकैलकुलेट मीन्स गलत कैलकुलेट होना, राइट? सो यहां पर मिस नेगेटिव वे में यूज हो रहा है। सो मिसैंथ्रोप का मतलब हुआ जो मैनकाइंड से हेट करता हो, राइट? हु हेट्स मैनकाइंड। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूट वर्ड, द रूट वर्ड गाइने, GYNE, विच मीन्स विमेन। आपने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा रिलेटेड टू गाइने, गाइनेकोलॉजिस्ट। गाइनेकोलॉजिस्ट इज द डॉक्टर हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स और फीमेल डिसीजेस। ओके, द मेडिकल स्पेशलिस्ट who treats female disorders. गाइने यहां पर हमारा रूट वर्ड है, इसी से पता चल जाता है कि दिस इज रिलेटेड टू फीमेल। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज मिसोगाइनिस्ट। अब यहां पर भी देखो मिस यूज हो गया, एंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि मिस नेगेटिव सेंस में यूज होता है, एंड गाइने इज रिलेटेड हियर टू विमेन। सो मिसोगाइनिस्ट मीन्स समबडी हु हेट्स विमेन। तो चलो जल्दी से अगले रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, विच इज गैमोस। गैमोस मीन्स मैरिज। और फर्स्ट वर्ड हेयर इज मिसोगैमिस्ट। अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था मिसोगाइनिस्ट। गाइने मीन्स वुमेन एंड मिस इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। इन द सेम वे गैमिस्ट हेयर रिप्रेजेंट्स मैरिज एंड मिस इज यूज्ड हेयर। ओके, सो it is used in the negative sense. So misogamist is the person who hates marriage. बच्चों, आप ये जानते ही होंगे कि काउंटिंग नंबर्स को हम इंग्लिश वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 के लिए हम यूज करते हैं मोनो,
and 2 के लिए we use by, and for 3 or more we use poly, right? Mono, bi and poly. So इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट 3 वर्ड्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज मोनोगैमी. Gamy is related to marriage, right? And mono means one. Okay. So monogamy means custom of only one marriage. सिर्फ एक ही मैरिज का रिवाज. Next word is bigamy. Gamies again represent marriage and bi means two. So ऐसी स्टेट जहां पर एक मैरिज को लीगली एंड ना करके दूसरी मैरिज की जाए. Unlawful act of contracting other marriage without divorcing one's current legal spouse. Okay. Come to the next word, polygamy. Understand it by breaking it. Poly means many, 3 or more. Okay. And gamy relates to marriage. So polygamy represents a state or act or custom where a male can have multiple wives. जितनी वो afford कर सकता है. That is a custom where a man can have as many wives as he can afford, both financially and emotionally. Okay, now moving on to the next root word, which is andros. Andros represent male. It means male. जैसे हमने polygamy word पढ़ा था, it is used for male, where a male can have multiple wives. This word is particularly used for males. ऐसे ही फीमेल के लिए क्या वर्ड होगा? वर्ड होगा पॉलीएंड्री. हमारी इंग्लिश डिक्शनरी बिल्कुल भी जेंडर वाइज नहीं है. ओके. सो सी हियर, पॉली मीन्स मैनी, 3 or more, मल्टीपल, एंड एंड्री हेयर रिप्रेजेंट मेल. The root word is andros, which means male. Okay, so polyandry is a state where a wife is having more than 2 husbands. Understood? Moving on to the last word of today's video, which is ascetic. Ascetic comes from the root word ascetes. It is a Greek word which means monk or hermit, means sadhu. Meaning of ascetic is, look here, a person who lives the life of a monk away from all materialistic pleasures. मतलब जो अपना घर बार छोड़कर, जैसे हम गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी और वो साधु का जीवन बिताया था उन्होंने. राइट, ठीक है. सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसेटिक के लिए. वो गौतम बुद्ध एक एसेटिक थे. ओके. Students, today we have discussed some new words, understood their root words, and have also learned some new words related to those root words. Okay. आज जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था इगोइस्ट, इगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, मिजोगैमिस्ट. राइट, दीज ऑल आर रिलेटेड टू पर्सनालिटी टाइप्स. आज का हमारा वीडियो कंटेंट एंड आने वाले कुछ वीडियोस का कंटेंट एक बहुत ही पॉपुलर बुक से लिया गया है, दैट इज वर्ड पावर मेड इजी. जिन स्टूडेंट्स ने ये बुक पढ़ी है, दे वुड हैव नोटिस्ड. दोज हु हैवंट, आई इंसिस्ट यू टू प्लीज रीड दैट बुक. I think this book is an excellent book to improve and to build your vocabulary. So that's all for today. I'll see you soon in the next video. In the next video, we will learn some new words related to a particular type and will understand their root words and find an easy and comfortable way to remember these words. So bye bye, take care, stay safe, stay healthy and keep learning.